Yesterday we were talking about the step response of second order system. So now we are going to calculate the step response of second order system. So this is the standard transfer function of second order system, which is having omega n as a natural frequency and your zeta is damping ratio. And if we are talking about step input, then your input Rs will be 1 by S. So using this formula, we use our step response Cs equals to Rs into the standard transfer function of second order system. Then we putting the value of Rs, which is 1 by S, as the input step response. So the final output will be Cs equals to omega n square upon S into S square plus 2 zeta omega n S plus omega n square. Further, this will be partial fraction. This will be partial fraction in the form of 1 by S minus this. This function, this particular function is partial fraction using the formula A by S, जो partial fraction का हमारा formula होता है, upon B by S square plus 2 zeta omega n S plus omega n square. Using this formula, we find the value of a and b. So when you find the value of a and b using the partial fraction for this particular function, then you will get a as 1 and the value of b will be s plus 2 zeta omega n. So we will get the partial fraction of cs like this. Further, this partial fraction is this particular denominator is, we make it as a complete square. For making it as a complete square, we multiplied it with the zeta omega n square. We add the zeta square omega n square and subtract the same quantity, so that we can make it as a complete square. So this particular function, let me clear all this. This particular function will be written as s plus 2 zeta omega n whole square. Then this particular function will be written as omega n will be taken common, omega n 1 minus zeta square. So the the CS whole output of second order system using with the step input will be changed in this form. In this form, 1 by s plus 2 zeta omega n, s plus zeta omega n square plus omega n square 1 minus zeta. देखो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया है. वी जस्ट टुक द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन जो हमने कल डिस्कस किया था. ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन लिया, ठीक है. सी एस बाई आर एस इक्वल्स टू दिस. सो सी एस इक्वल टू आर एस इंटू दिस स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन. हमने कहा कि वी आर यूजिंग स्टेप इनपुट. जब हम स्टेप इनपुट यूज कर रहे हैं, सो द इनपुट विल बी 1 बाई एस. तो हमने आर एस की वैल्यू दी 1 बाई एस, ठीक है. देन हमने क्या किया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया 1 बाय एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी अपॉन समथिंग. ए और बी की वैल्यू निकाली, जहाँ ए की वैल्यू आपकी 1 और बी की वैल्यू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा आई यूजिंग दी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन. देन इस पर्टिकुलर को हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया. अब हमें करना क्या है, बेसिकली इस टाइम रिस्पॉन्स निकालने के लिए हम, आपको याद हो फर्स्ट ऑर्डर में भी क्या करते थे, हम उसका इनवर्स लाप्लास लेते थे, ठीक है. तो हमें सी एस का इनवर्स लाप्लास लेना, सी टी निकालना है. तो सी टी निकालने के लिए हम इसका सी टी तो ऐसे इनवर्स लाप्लास तो निकलेगा नहीं इस पर्टिकुलर फंक्शन का, तो हमने उसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया. कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर को ऐड कर दिया, उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है. तो इट इज कन्वर्टेड इन a प्लस b का होल स्क्वायर. देन दिस फॉर्मूला इज फर्दर changed by using this function. We put omega d equals to omega n under root 1 minus zeta square. Just so this, this particular term, we put this term as omega d, where omega d is called damped frequency. It is the frequency which is influenced by the damping ratio zeta, which is influenced by the value of damping ratio. So then
what we did, now this is, now this become your a plus b, the a square plus this b square. Now what we did, we changed it in the form of s plus zeta ओमेगा n, और एक जीटा ओमेगा एन मैंने अलग ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान से देखो, दिस इज ए माइनस फंक्शन, एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन था, तो एक जीटा ओमेगा एन मैंने एस प्लस इसके साथ ले लिया और एक मैंने अलग उसके साथ लिख दिया। मतलब दिस लाइक दिस इट्स लाइक ए प्लस टू बी अपॉन समथिंग दिस कंप्लीट वैल्यू लेट्स से सी। तो मैंने इसे क्या कर दिया, इसे कर दिया ए प्लस बी अपॉन सी, ठीक है, इस फ्रैक्शन को प्लस बी अपॉन सी। आई चेंज लाइक दिस। ये क्यों किया, नाउ आप जस्ट नाउ आप अगर देखोगे तो दिस इज योर फॉर्मूला, इनवर्स लाप्लास फॉर्मूला ऑफ योर e to the power minus at into cos t into cos bt। तो अगर मैं इसका लाप्लास लेता हूं, e to the power minus at इंटू कॉस बी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूं, तो कॉस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है योर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। e टू द पावर माइनस ए टी की मल्टीप्लाई इसमें होती है, तो ये हो जाता है s प्लस ए हो जाता है यहाँ पे, s प्लस ए, s की जगह s प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा s प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ से हट के s प्लस ए का होल स्क्वायर। सो टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी इंटू कॉस बी टी फॉर्मूला, मैंने इसको इस फॉर्म टर्म में चेंज कर दिया, जैसे ये साइन, लेट मी क्लियर ऑल दिस, it will be like s plus this a प्लस अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका e टू द पावर माइनस एक्स ए टी इंटू कॉस बी टी का फॉर्मूला बन गया फॉर द इनवर्स लाप्लास। ऐसी सेम ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर साइन e टू द पावर माइनस ए टी इंटू साइन बी टी। यहाँ आगे देखते हैं, देखो उसी इक्वेशन को सिंपली मैंने लिखा है, नाउ जस्ट टेकिंग जस्ट एक मैंने ये ओमेगा साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन की फॉर्मूले में आपकी वैल्यूज होती है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट साइन बी टी, तो साइन बी टी का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कॉस का फॉर्मूला कंप्लीट बन गया हमारा, दिस वन इज द कॉस कंप्लीट फॉर्मूला। इसको हमें साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए अब इसमें क्या है कि s, देन अगर मैं इसमें e टू द पावर माइनस ए टी की और मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी योर, यहाँ से ये s की जगह हो जाएगा, लेट मी क्लियर दिस, देन e टू द पावर माइनस ए टी की और मल्टीप्लाई अगर साइन के आगे हो गई तो दिस विल बी द फॉर्मूला विल बी लाइक s प्लस ए का होल स्क्वायर b अपॉन s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो अब इस पर्टिकुलर टर्म को देखो, यहाँ पे s प्लस ए का होल स्क्वायर मिल रहा है आपको प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे b नहीं है, इस पर्टिकुलर यहाँ पे b नहीं है, दिस b। तो b क्या है, इसको साइन की इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए b की वैल्यू ओमेगा डी होनी चाहिए। तो ओमेगा डी जो हमने अज्यूम किया था, वी अज्यूम्ड ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर, वन माइनस जीटा का स्क्वायर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये दिस वन, दिस वी पुट ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा एन वन माइनस जीटा का होल स्क्वायर, ये हमने लेट किया था, लेट ओमेगा डी इक्वल्स टू दिस। तो इस फॉर्म में, इस फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ओमेगा डी लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जीटा दिस अंडर रूट वन माइनस जीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर से ही डिवाइड कर दिया, so that your equation will be like, let me clear all this, your equation will be like this कि omega d upon s plus, so this will be like b upon s, this b upon s plus a का whole square plus b square। तो ये आपका e to the power minus at into sin bt का फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो ये जो टर्म थी, ये टर्म हमने यहाँ अलग लिख दी। नाउ टेकिंग द इनवर्स लाप्लास, अब मैंने इसका इनवर्स लाप्लास लिया, तो वन बाय एस का इनवर्स लाप्लास विल बी वन,
दिस टर्म इज, मैंने आपको बताया था ये कॉस की टर्म में है, दिस विल बी लाइक, दिस इज द इनवर्स लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस at. Just hold on, just a minute. Yes. So, so this is like your e to the power minus at ये into cos bt, जहाँ पे a की वैल्यू हो गई योर जीटा ओमेगा एन और b की वैल्यू हो गई योर ओमेगा डी. देन अगेन ये तो एज इट इज कांस्टेंट नीचे आ गया यहाँ पे. दिस विल बी कन्वर्टेड in when we are taking inverse Laplace of this will be the Laplace of a to the power at into sine bt. Again a की वैल्यू जो है that is s plus a, this zeta omega n is a, and b की वैल्यू यहाँ पे omega d है. तो this complete cs will be converted in the time domain you with this particular equation. एक बार इस इक्वेशन को सब लोग देख लें कैसे आई, एक बार इस कैलकुलेशन को देख लें, अगर कोई किसी को कहीं दिक्कत है तो पूछ ले वो. तो किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है चलो. सो दिस इज द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द अंडरडैम्प्ड सिस्टम. अगेन थोड़ा सा मैंने इसे और e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी को बाहर ले लिया, तो दिस विल बी रिड्यूस लाइक दिस. ठीक है. अगेन इसको मैं और शॉर्ट कर सकता हूँ, ये इसको मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ साइन ए प्लस बी का. तो दिस विल बी योर लाइक दिस sin omega dt plus tan inverse e to the under root 1 minus zeta square upon zeta. So these two are the final equation of step response of second order system, where omega d equals to आपका है omega n under root 1 minus zeta square. ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, this particular formula and this equation. ये कोई भी एक इक्वेशन, दोज आर द सेम इक्वेशन, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट. जो मैं आपसे कह रहा था इन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स नहीं होता ज़्यादा, वो 1 माइनस ई टू द पावर समथिंग की टर्म में आ रहा था. सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जैसे ही आया, नाउ वी आर हैविंग द साइन एंड कोसाइन टर्म्स. दैट मीन्स योर ऑसिलेशन विल स्टार्ट. आप साइन की अगर इक्वेशन देखो, साइन की अगर ड्रॉ करोगे साइन को, तो साइन विल बी लाइक दिस. ठीक है, देयर आर ऑसिलेशंस. So now the oscillation will start in our response. Now the oscillation will start, and this e to the power minus x is tried to reduce the oscillations. ठीक है. So this is the final equation for second order system for step input. This one. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? And this is the graph of second order system with step input. This is your applied input, step input, unit step input, the value is 1. This is your applied input, and this is your CT. This is your CT. This is your output. So the input will start from 0. It tried to achieve the desired value. ये desired value है, but because of sine and cosine term, it will give the oscillations, and the e to the power minus x term will try to reduce the oscillation. ये जो oscillation चल रहे हैं, e to the power minus x वाली term इसको reduce करने की कोशिश करेगी, और sine की टर्म की वजह से, साइन कोसाइन टर्म की वजह से यहाँ पे ये ऑसिलेशन जनरेट हुए हैं. अदरवाइज आपको याद हो, द फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स for the step input, the first order response will be like this only. ऐसे होता था, उसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होते थे. बट ये जो अब जो बना है सेकेंड ऑर्डर, दिस विल बी लाइक सम ऑसिलेशन, बिकॉज द डिजायर्ड वैल्यू जो है वो 1 है. अब आप यहाँ देखो, यूजिंग दिस इक्वेशन, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ठीक है, ड्यू टू दिस साइन और कोसाइन टर्म,
और वी कैन से ड्यू टू दिस। अगर इस साइन टर्म की वजह से साइन की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी टी की वैल्यू 1 प्लस समथिंग, 1 से ज्यादा चली आएगी। जबकि इनपुट क्या था, डिजायर्ड इनपुट क्या था हमारा, आपका स्टेप रिस्पॉन्स, यानी आर एस इक्वल्स टू 1, Rs equals to 1 by S, और we can say RT, your RT equals to 1। तो डिजायर्ड आउटपुट था हमारा 1 आना चाहिए था, बट ये साइन टर्म की वजह से अगर साइन टर्म नेगेटिव वैल्यू देता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो आवर आउटपुट विल बिकम मोर देन 1। सो आउटपुट जो है वो इसके ऊपर चला गया, शूट अप हो गया डिजायर्ड वैल्यू के। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ये नीचे ही रहता था क्योंकि साइन की कोई टर्म नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ साइन टर्म ये शूट अप हो गया ऊपर की तरफ, तो देयर विल बी सम ऑसिलेशंस। तो जीटा जो है, जो डैम्पिंग की हम बात कर रहे थे, वो डैम्पिंग क्या करती है, वो इस ऑसिलेशन को ही कम करने की कोशिश करती है। द जीटा इज ट्राइड टू रिड्यूस दिस ऑसिलेशंस। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको। नाउ देयर आर सम टर्म्स, ये जब ग्राफ हमने ड्रॉ किया, दिस इज नाउ अगेन आई एम राइटिंग हियर, दिस इज योर सी टी, दिस इज योर इनपुट आर टी, दिस इज योर इनपुट आर टी, अब स्मॉल में भी लिख सकते हो आर को, दिस इज योर आर टी इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज योर आउटपुट। नाउ देयर आर सम टर्म्स, आपको पता है कि दिस इज योर दिस इज योर स्टेडी स्टेट पार्ट, steady state, this is your transient response, this is your steady state response and this is your transient response। नाउ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें निकालनी होती हैं। इन टर्म्स को हम देखते हैं। फर्स्ट टर्म इज योर टी डी, इसको ध्यान से सुने आप, टी डी, दिस इज योर डिले टाइम। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, टू रीच इज 50% ऑफ फाइनल वैल्यू। देखो फाइनल वैल्यू क्या है, 1 है, हमें फाइनल वैल्यू ये चाहिए, ठीक है, दिस 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 इज द फाइनल वैल्यू, ये डिजायर्ड वैल्यू है, हमें 1 चाहिए डिजायर्ड वैल्यू। तो जब ये td is the time by which the system achieve its final, it's 50% of its final value, so 50% is 0.5। तो जब ये 0.5 वैल्यू तक पहुंच जाता है, यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड डिले टाइम। दिस इज योर डिले टाइम, डिले डिले टाइम, ठीक है, दिस इज योर डिले टाइम। नाउ tr, tr is the rise time, tr is the rise time। Again, this is the time required by the second order system for the unit step input to reach its desired value, to reach its 100% value. Rise time is to reach its 100% of final value or desired value. 100% of desired value. Time required by the system to reach its 100% of final desired value। ठीक है, और वो फाइनल वैल्यू डिजायर्ड वैल्यू क्या, 1, कि ये 1 पे कब पहुंच रहा है पहली बार। ठीक है, ये 1 पे कई बार पहुंच रहा है, यहाँ पे भी 1 पे पहुंचेगा, देन फिर 1 आ रही है वैल्यू, फिर इसकी इस कर्व की वैल्यू 1 आ रही है। तो पहली बार ये आपका डिजायर्ड वैल्यू पे कब पहुंचा, दैट इज कॉल्ड योर राइज टाइम। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू। Then TP is your peak time. See, there are several peaks in this second order system response। ये भी एक peak है, then ये भी एक peak है, इसके आगे और जो oscillations आ रहे होंगे, let's say this, so this is also a peak। So TP is the time required by the system to reach the maximum overshoot। maximum जो होगा वो पहला overshoot ही होगा सबसे ज्यादा, इसके बाद क्या होगा, डैम्पिंग लग जाएगी और डैम्पिंग जो है overshoots को कम करती जाएगी। So TP is the time required by the system to reach its peak value। It is also called, TP is called peak time। TP is called peak time। Peak time means, as the name state, that it is the time required by the system to reach its peak value, maximum value जो है, इससे ज़्यादा value नहीं होगी इस system की, maximum value। Then TS, TS is the settling time। TS is the settling time। Settling time, so settling time, as the name suggests,
इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू रीच इज, यहाँ इस टीएस के बाद क्या शुरू हो रहा है, स्टडी स्टेट, टू रीच इज रीच in study to be in steady state or to reach the steady state. Time required by the settling time is the time required by the system to reach the steady state when the error in the system is 2 to 5% होगी। steady state कब आती है, जब error जो है 2 से 5% के बीच में ही रह जाता है, ठीक है। so this is the settling time। एक टर्म और है, it is the MP। MP is called maximum overshoot, your max overshoot। it is the value maximum overshoot, it is the value of the time response of the second order system, it is the maximum value of the second order system above the desired value। desired value थी 1, इसके ऊपर ये कितना मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू इसकी अचीव हो रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू above the desired value of the second order system response for a unit step input is called the maximum overshoot। maximum overshoot। तो ये कुछ टर्म होती हैं इसकी, टीडी, टीआर, टीपी, टीएस, एमपी, ये सब चीजें हमें निकालनी होगी, इनके फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करके हम ये सारे फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टी आर क्या है, टी आर इज द राइज टाइम, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, टी आर इज द राइज 100% ऑफ डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। और डिजायर्ड वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें सी टी इक्वल्स टू अगर 1 पुट कर दें और वहां पे ये टी की वैल्यू निकाल दें, तो दैट इज कॉल्ड योर राइज टाइम। जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो सी टी इक्वल्स टू 1 पुट कर दें और टी की वैल्यू निकाल दें। तो इस तरह से हम निकालेंगे, देखेंगे कल इसे करते हैं। तो these are the terminologies of second order system with step input, और उसका this is your transfer function of sorry response of the second order system for step input, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, all clear? yes